While addressing 1.46 billion population on marking 79th Independence Day celebration, PM Narendra Modi ji announced multiple initiatives that will lead India to become Viksit Bharat in the coming future. Among those initiatives, he took one initiative specifically for youth to generate employment for them. So in today's video, we are going to decode that what is Pradhan Mantri Viksit Rozgar Yojana, or you can call it Employment Linked Incentive Scheme as well. This is what we are going to analyze in today's video. Before I go ahead, this is the link of my Telegram channel. Of course, if anyone is here who's having any doubt, you can join this particular channel. And of course, we are going to analyze that what is PM Viksit Bharat Rozgar Yojana here. Of course, multiple of announcements were made by multiple of ministers and maybe CMs as well. But इस न्यूज़ को या फिर इस पर्टिकुलर स्कीम को डिकोड करने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर अंडरस्टैंडिंग देम या फिर if you're not understanding those concepts, it will be tough for you people to understand that what kind of initiative has been taken. Of course, कोई भी initiative लिया जाता है तो वो किसी न किसी social issue के related होता है. Although we become fourth largest economy, but still, if I take into consideration the ground situation, there are many of the social issues which are still existing. So what are the issues which are related to that, and what is the concept that is very important before understanding about this particular scheme is what we are going to analyze here, and then we will be understanding what are the features that are related to it. So firstly, we will be starting with one concept which is known as demographic dividend. आई होप बहुत सारे बच्चों ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा. एंड एग्जामिनेशंस फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मे बी यूपीएससी, मे बी आरबीआई, मे बी अदर एग्जामिनेशंस आस्क यू क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू इट. सो दिस बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. उसके बाद हम एक और इशू करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है वो एग्जैक्टली लिया क्यों गया है और कैसे ये इन सोशल इशूज़ को या फिर जो इशूज़ है जो अभी हमारे इंडिया में चल रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करेगा. सो व्हेन आई टॉक about demographic dividend, this is what. अच्छा, इसको सबसे पहले डिकोड करेंगे, then you people just understand it. Demographic means what? This is entirely related to my population. Okay, dividend means what? If my population is generating profit for me, मैं उसको क्या बोलूंगी? मैं उसको बोलूंगी डेमोग्राफिक डिविडेंड. मतलब वो पॉपुलेशन मेरी सोसाइटी में जो कि मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है या फिर वो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडिया को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो क्या होगा? दैट विल बिकम पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. नाउ व्हाट डू यू कंसीडर? आर एजेड पॉपुलेशन कंसीडर्ड एज assets or liabilities? Of course, they are liabilities. Why? Because it's a kind of burden on the shoulders of the government. They are paying them pension, and along with that, they are not working at all. So, वो क्या है? They are they are liability rather than asset. जो aged population है, वो क्या है? वो liability है. और if I talk about young population, तो मेरी young population क्या है? Young population is an एसेट फॉर एनी ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं. दे आर इम्प्रूविंग बाय वर्किंग, दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, अलॉन्ग विद दैट दे आर समवेयर इन अदर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ entire economy as well. So who is the asset here? That is of course young population. तो young population क्या होगी? अगर किसी भी कंट्री में young population ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है एजेड पॉपुलेशन से, सो वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर कंट्री अंडर दिस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक डिविडेंड. मतलब किसी भी कंट्री के पास ये रिसोर्स है. डेमोग्राफिक डिविडेंड एक अकेला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट दिस इज मोर लाइक अ रिसोर्स एनी कंट्री इज हैविंग. अ पॉपुलेशन कैन बी बून एज वेल एज बेन एज वेल. ऑफकोर्स जो पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है उससे कई ज़्यादा हद तक जो रिसोर्सेज को मीट करना इट इज टफ, राइट? बट अलॉन्ग विद दैट इफ देयर इज high population in any of the country and that to young population, remember they can generate productive activities and they are very much worth of bringing any of the economy right from downgrade towards best grades. This is the strength of any of the economy. अगर मैं इंडिया की बात करूं सो अभी भी अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं सो 30 से नीचे हमारे पास जो है वो रिच पॉपुलेशन है. इट मीन्स कि मेरी जो पॉपुलेशन है इट इज वर्थ ऑफ वर्किंग, इट इज वर्थ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ द इकोनॉमी, मे बी इंडिया ऑल्सो. इफ इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम विकसित भारत तो हम इस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. बट क्या सिर्फ पॉपुलेशन होना या फिर क्या अकेला रिसोर्स होना इज वर्थ? द आंसर इज अगेन नो. इफ यू हैव एनी ऑफ द बुक एंड यू गेट टू नो कि इसको बुक को रीड करने से मैं कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर लूंगा,
तो आपके पास वो सामने बुक पड़ी है, बट जब तक आप उसको उठा के पढ़ोगे नहीं, जब तक आप एक एक चीज अंडरस्टैंड नहीं करोगे, विल यू बी एबल टू क्रैक एग्जाम? The answer is again no. So what you need to do, you need to exploit this particular resource, that is what my young population. अगर इनको मेरे को काम करवाना है, so what are the things which are necessary here for any of the economy who's having young population? So सबसे पहले skill set is very much important, है ना? स्किल्स इज वन ऑफ द थिंग्स विच दे शुड हैव. स्किल्स होंगी तभी मेरी पॉपुलेशन जो है वो काम करने लायक बनेगी. अगर मेरे पास सिर्फ यंग पॉपुलेशन है बट उनके पास स्किल्स ही नहीं है, उनके पास उतना क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो जाके कहीं पे काम कर सके, सो आर दे वर्दी? द आंसर इज अगेन नो. नेक्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? What if they are having skill but there is no employment generation in any of the economy? So that is also a kind of absurd situation. So इन चीज़ों के लिए अगर मेरे को इसका exploitation करना है resource का, what is important? सबसे पहले तो जो young population है उनको skill sets उनके अंदर होने चाहिए, so that we can utilize, any of the economy can utilize their skill sets. उसके बाद क्या होना चाहिए कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पॉलिसी मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे उनको अवेलेबिलिटी करवाई जाए. किसकी? जॉब अवेलेबिलिटी. दैट इज जॉब अवेलेबिलिटी. दीज आर द two things that any of the economy has to ensure if they want to utilize this particular asset, if they want to utilize this particular resource. क्या हम इस रिसोर्स को ऐसे ही रहने दें? मे बी 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक अगर मैं इस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं करूंगी तो क्या मेरे पास स्टिल एजेड पॉपुलेशन ही रहेगी? क्या मेरे पास स्टिल यंग पॉपुलेशन ही रहेगी? द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स विच इज वेरी लिमिटेड इन मैनर. Before we jump on to aged population more, we have to utilize this particular resource. Otherwise, this demographic dividend will become what? This demographic dividend will become disaster. This demographic dividend will become demographic disaster. So before making it getting turned into demographic disaster, it becomes our responsibility, maybe the responsibility of the policy makers, maybe responsibility of individuals also, and maybe the government as well, to utilize this particular resource before it gets into demographic disaster. So this is the concept which is related to demographic dividend. What is the another kind of problem that India is having? अब अगर मैं employment की बात करूँ या फिर अगर मैं sectors की बात करूँ, यहाँ पे ब्रॉडली वी आर हैविंग 2 सेक्टर्स, है ना? एक तो हमारे पास फॉर्मल सेक्टर है और दूसरा हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर है ना? सेकेंड, वी आर हैविंग इनफॉर्मल सेक्टर. Now you will say that ma'am, okay, 2 sectors are, we are having 2 sectors, but यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आती है वो किसके रिगार्डिंग आती है? दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव काइंड ऑफ जॉब. सेक्टर्स तो हमारे पास 2 हैं, दोनों में जो एक इंडिविजुअल है वो काम कर सकता है, बट कौन सी क्वालिटेटिव जॉब है? दैट इज ऑफ कोर्स फॉर्मल सेक्टर. क्यों फॉर्मल सेक्टर क्वालिटेटिव जॉब बोली जाती है? बिकॉज दिस प्रोवाइड्स यू समथिंग विच इज नोन एज सोशल सिक्योरिटी. ओके, मे बी इन टर्म्स ऑफ पेंशन, maybe in terms of insurance, okay, maybe in terms of leaves, okay, maybe this formal sector sometimes provide you further opportunities as well. Promotion करना, maybe कहीं आपको बाहर भेज रहे हैं to get to become more skillful या फिर to learn more skills. So every kind of opportunity you will find in this formal sector only. But when I take into consideration informal sector, for example, if there is any of the individual who is working in Zepto, maybe, okay, Zepto as a Zepto delivery man जो है वो एक individual काम कर रहा है, या फिर maybe किसी showroom में लगा है. So do you expect from that particular individual कि वो social security initiatives या फिर जो social benefits यहाँ पे जो formal sector दे रहा है वो similar informal sector भी देगा? The answer is again no. But what is the problematic situation currently with India? That if I take into consideration out of 100 population, more than 90% of population is specifically in this informal sector only, and less than 10% sector, maybe in between 9 to 10% sector, population is just in this particular formal sector. अब यहाँ पे इफ आई टेक इन टू कंसिडरेशन अदर थिंग्स, मे बी अगर मैं पेंशन की बात करूँ, मे बी अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ, मे बी अगर मैं APF की भी बात करूँ, तो यहाँ पे क्या करा जाता है? कंट्रीब्यूशन करी जाती है. जो हमारा एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करेगा ना. मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्टिल आर्ग्यू कि मैम यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो है इफ आई टॉक अबाउट द एंट्री लेवल, या इफ आई टॉक अबाउट देयर इनिशिएटिव्स ऑल्सो, फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी है जहाँ पे
अगर वो कंट्रीब्यूट करें तो कहीं ना कहीं वो भी बेनिफिट्स ले सकते हैं. बट नाउ इट कम्स ऑन टू द अमाउंट दे आर गेटिंग हियर. Specifically, if I take into consideration this formal sector, so they are worth of contributing towards pension sector and towards EPF and maybe their long term investment as well. बट यहाँ पे अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूँ या फिर वॉट एवर दे आर गेटिंग इन दिस इनफॉर्मल सेक्टर, मे बी इफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल इज गेटिंग payment, if it may be salary, maybe wages specifically, for sustaining only, for life sustaining only, but otherwise they are not very much worth, or maybe they are not very optimistic कि वो पेंशन का सोचे या फिर वो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का सोचे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन करना, जितनी भी उनको सैलरी मिलेगी वो सिर्फ सस्टेनेंस के लिए होगी. उनके पास इतना सैलरी भी नहीं मिलेगा उनको इनफॉर्मल सेक्टर में कि वो यहाँ से पहले पेंशन सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करे, वो अपने लॉन्ग टर्म का सोचे, मे बी EPF में भी डालना शुरू कर दे या फिर अलग अलग इनिशिएटिव्स में वो जाके कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे. उनको उतना ही सैलरी मिलता है जहाँ से वो जो सस्टेनेंस है वो सिर्फ जो लाइफ सस्टेनेंस है सिर्फ उधर वहाँ तक ही ओरिएंटेड है. अदरवाइज इफ आई टेक इनटू कंसिडरेशन कि उनको वो अपना सैलरी निकाल के फिर कंट्रीब्यूट करे, इट इज टफ फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन वी आर हैविंग. नाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाई गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद दीज वेरियस इनिशिएटिव, जैसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव हो गया, फिर जो विकसित रोजगार योजना हो गया. ये क्यों लिया गया है? ताकि हम क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सके. ठीक है, क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव हैज बीन टेकन. नाउ वन इनिशिएटिव, लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस रीसेंट इनिशिएटिव, दिस वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. एंड व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव? So this says, the government says that here I'll be providing benefit to both employer as well as employee also. Employer as well as एम्प्लॉय ऑल्सो. ठीक है, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स होंगे उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट वो एम्प्लॉयर जो हायरिंग को या फिर मे बी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करेगा उनको भी बेनिफिट मिलेगा. सो दिस बेनिफिट इज फॉर बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय ऑल्सो. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू पीपल हैव टू रिमेंबर हियर, दैट यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की बात करूँ, विकास योजना की बात करूँ, तो इट इज हाईली एम्फेसाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके, इट इज हाईली putting focus on manufacturing sector, because अगर मैं manufacturing sector की बात करूँ, so everyone knows the history of India. We have jumped right from agricultural sector to services sector only. And if I talk about the in-between part, that is manufacturing sector, maybe if I talk about you have three of the sectors here, but if I talk about the middle one, so of course this is having high potential, है ना. जो हमारा manufacturing sector है, जो हमारा industrial sector है, इसके पास बहुत potential है कंट्रीब्यूशन करने में, नेशनल इनकम में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एंड मे बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल. सो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है, नाउ गवर्नमेंट वांट्स टू अनलॉक देम. Governments wants to exploit these resources which are specifically in the manufacturing sector, so that we can take its help and maybe through its help we can boost our economy also, and along with that जो हमारी employment generation है वो भी हो जाएगी. So this is the entire idea about this particular initiative. Now in the coming slides we will be discussing कि हमारा जो ये particular initiative है वो exactly है क्या, जो कौन कौन से initiatives इसके अंदर लिए गए हैं, employer को क्या benefit मिलेगा, employee को क्या benefit मिलेगा. So if I take into consideration this broader idea, so यहाँ पे numbers become very important. जो period है that is specifically of 2 years. Of course जो target है that is of 3.5 करोड़, और मे बी अगर मैं बजट आउटले की बात करूं that is 99,446 करोड़. Of course it is going to be operated by EPFO, Employment Provident Fund Organization itself. and अगर मैं इस particular scheme की बात करूं, so always remember कि यहाँ पे जो benefit है वो दोनों को मिलेगा. ठीक है, that is employees as well as employers also. अब यहाँ पे एक जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो जॉब क्रिएशन होगी वो फॉर्मल जॉब क्रिएशन होगी, या फिर जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको बूस्ट करने की गवर्नमेंट बात करती है. अब यहाँ पे क्यों बात करती है इसकी? सो दैट हम जो सोशल सिक्योरिटी है उसको प्रमोट कर सके. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी को बूस्ट कर सके, हम लोगों को या फिर इंडिविजुअल्स को या फिर स्पेसिफिकली जो हमारा यूथ है उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना शुरू करें. दिस इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स वन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी हाईली हेल्पफुल हियर, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. सो ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द कमिंग स्लाइड्स. बट अगर मैं सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की बात करूँ उनको क्या मिलेगा, फिर उसके बाद हम एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, हाउ दे विल बी एबल टू अप्लाई, वी विल बी एनालाइजिंग अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो. सो जो हमारे एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये पहली कंडीशन है कि दे शुड बी फर्स्ट टाइम EPFO रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़, तो सबसे पहले उनको मिलेगा। एंड देयर इज वन कंडीशन ऑल्सो, दे शुड बी अर्निंग अप टू 1 लाख पर मंथ। अलॉन्ग विद दैट जो इंसेंटिव्स है वो उनको प्रोवाइड होंगे, दैट इज 15,000, एक बार में ही नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स 15,000 विल बी देयर, दैट विल बी पेड इन 2 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। अब ये जो 15,000 है उसके ऊपर भी कंडीशन लगेगी, ऑफ कोर्स दे हैव टू सर्व फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तब एक 15,000 मिलेगा, फिर उसके बाद जब दूसरा पीरियड फुलफिल करेंगे फिर उनको फिर से वो बेनिफिट मिलेगा। सो दैट इज हाउ द एंटायर थिंग इज गोइंग टू हैपन। और अगर मैं बात करूं कि मनी ट्रांसफर की, कि मनी जो ट्रांसफर होगी वो कैसे होगी, सो ऑलवेज रिमेंबर हियर व्हेन आई टॉक अबाउट एम्प्लॉयज दिस विल बी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, दिस विल बी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट transfer in their accounts. Okay, this is going to follow direct benefit transfer. The first installment है that will be given after the completion of 6 months in the job. जब वो 6 months complete कर लेंगे तभी उनको क्या मिलेगा, 15,000 मिलेगा। Now this is not similar for all of them. यहाँ पे क्या लिखा है, they should be earning up to 1 lakh per month. Okay, it means कि थ्रेशोल्ड, या फिर अगर मैं सीलिंग की बात करूं, सीलिंग हैज बीन फिक्स्ड है, दैट इज अप टू 1 लाख। जो उसके नीचे नीचे अर्न करेंगे सिर्फ उनको ही बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे 15,000 की बात करूं, दैट विल बी डिवाइडेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अमाउंट दे आर अर्निंग एग्जैक्टली। अलॉन्ग विद दैट जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 12 मंथ से फिर 1 साल कंप्लीट करने के बाद, अलॉन्ग विद दे शुड कंप्लीट अ फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल एज वेल। सो ऑन फुलफिलिंग दीज 2 रिक्वायरमेंट्स दे विल बी गिवन अनदर 15,000। सो 15,000 पहला मिलेगा 6 महीने कंप्लीट करने के बाद, जो दूसरा 15,000 मिलेगा सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी जो मॉड्यूल है उनको वो कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इंटायर 12 मंथ्स का जो पीरियड है उनको सर्व करना पड़ेगा, देन ओनली दे विल बी गिवन विद दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। पार्ट ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट इज हेल्ड इन अ डेजिग्नेटेड सेविंग्स अकाउंट टू प्रमोट अ लॉन्ग टर्म सेविंग्स। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट दे आर प्रमोटिंग व्हाट, सोशल सिक्योरिटी। ओके, दे आर प्रमोटिंग व्हाट, दे आर प्रमोटिंग सोशल सिक्योरिटी। अच्छा, इससे भी पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है हम इसको एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी बोलते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब सभी ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो जरूर सुना होगा, एवरीवन हैज हर्ड ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब एग्जैक्टली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में होता क्या है कि वो आपका बेस ईयर और जो आप अभी का जो आपका टर्नओवर है, या फिर अभी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको वो काउंट करेंगे, और जितना भी वहाँ पे इंक्रीज होगा, जितना भी वहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू पीपल। इन क्रक्स, या फिर इन लेमन लैंग्वेज व्हाट आई मीन टू से, कि जितना प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे उतना आपको बेनिफिट्स भी होंगे, दैट इज व्हाट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सिमिलर इज द केस विद दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो, द क्लियरली सेज कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, कि जितना आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। Now remember, employment यहाँ पे generate कौन करेगा? That is of course employer. That is the reason we clearly say कि यहाँ पे employer plus employee दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो एम्प्लॉयज है उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट जो एम्प्लॉयर है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन इट इज ऑल ओरिएंटेड टू एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नाउ इज अ टर्न टू सी दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयर हियर। सो अगर मैं एम्प्लॉयज के बारे में बात करूं, सो ऑफ कोर्स दे शुड बी, द कंपनी शुड बी EPF रजिस्टर्ड, दैट इज वन कंडीशन हियर। If they hire the additional staff, then only the benefits will be provided to them. और यहाँ पे हायरिंग के लिए भी क्या जो इनिशिएटिव्स है, फिर जो हायरिंग के लिए भी क्या सिस्टम सेट है, सो दे कम्प्लीटली सेज कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, फिर कोई भी कंपनी अंडर 50 स्टाफ है, ठीक है, किसी भी कंपनी में जो स्टाफ है दैट इज अंडर 50, सो ऑफ कोर्स दे हैव टू go with employment generation, at least 2 extra hiring should be done. What if there is more than that? अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी में if there are more than 50 workers, okay, if they are equivalent to or more than 50 workers, so this is their obligation to hire 5 extra workers, okay, that is 5 extra workers. Similarly, अगर कोई भी कंपनी में less than या फिर equivalent to 50, not equivalent to but specifically more than और less than 50 workers हैं, तो उनको कितने हायर करने हैं? 2 extra. Okay, this is the structure that they have to follow.
एंड अलॉन्ग विद दैट जो एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा वो रहेगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा 3000 पर मंथ पर एलिजिबल टू न्यू हायर. ओके, दिस इज द इंसेंटिव दैट विल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. अच्छा, अगर किसी भी सेक्टर की बात करूं एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर किसी और सेक्टर में हायरिंग हो रही है तो दिस इज द बेनिफिट दैट दे आर गोइंग टू गेट फॉर 2 years. बट अगर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर करते हैं तो उनको 4 साल के लिए जो इनिशिएटिव है, जो 4 साल के लिए जो बेनिफिट है वो उनको दिया जाएगा. सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू, जो स्पेसिफिक एरिया है, फिर जो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज हाईली ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके, दिस इज द इंटायर इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू दैट. अब यहाँ पे कौन कौन एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है, अगर मैं स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू इंश्योर दैट दे ज्वाइन EPF registered establishment after this 15th August 2025 only, because then only it was active. Along with that, earn gross wages that is up to 1 lakh per month, or maybe less than that, that is up to 1 lakh per month only. They should use unique Aadhaar number, use based face authentication via Umang app. They should stay employed for 6 months, तभी उनको 15,000 मिलेंगे. और अगर वो और 12 मंथ्स के लिए स्टे करते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी जो मॉड्यूल है उसको फिनिश करेंगे तो उनको और ज़्यादा जो पैसे हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा 15,000 है वो भी मिलेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयर्स हु कैन एम्प्लॉय हियर, सो सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर कंपनी शुड बी EPF रजिस्टर्ड, दैट इज वन ऑफ द केसेस. अलॉन्ग विद दैट, हायर एलिजिबल न्यू हायर्स और रीजॉइनिंग वर्कर्स विद आधार ऑथेंटिकेटेड UANs, they should submit monthly electronic challan return with PF contribution on time, and they should maintain new hires for a minimum 6 months to qualify for the incentives. That is what is the condition that has been specified here. How to apply? So if I take into consideration employees, so there is no separate application that is required here. Once PF account is created for the first time and linked to Aadhaar number, eligibility is automatic in nature and payments are automatically transferred, or maybe they are directly given to them to their आधार सीडेड बैंक अकाउंट. अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, सो दे मस्ट ऑब्टेन दिस EPFO कोड थ्रू श्रम सुविधा पोर्टल. दे शुड रजिस्टर देयर कंपनी अंडर दिस EPFO. ये जो है एक कंडीशन है. दे शुड हायर एम्प्लॉयज़ टू इंश्योर दैट दे मीट वेजेस एंड रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया. अलॉन्ग विद दैट दे हैव टू गिव कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट्स ऑल्सो. File monthly ECR with contribution, and then incentives are credited to PAN linked account. Okay, remember, to PAN linked account every 6 months via डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. इससे इनके पैन लिंक्ड अकाउंट में जाएगा. बट अगर मैंने एम्प्लॉयज़ की बात करी तो उनके डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, राइट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्टली इन देयर अकाउंट. सो दिस इज अ डिफरेंस ऑल्सो हियर विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. अगर मैं यहाँ पे क्रक्स की बात करूँ, सो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है फॉर द फर्स्ट टाइम बेनिफिशरीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सैलरी शुड बी अप टू 1 lakh. जो एम्प्लॉयर्स हैं दे ऑल्सो नीड टू मीट द वेरियस थ्रेशोल्ड्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब यहाँ पे जो उनको बेनिफिट दिया जाएगा, जो 3000 मैंने बात करी, वो भी उनकी सैलरी के रिलेटेड है. ठीक है. अब यहाँ पे हो सकता है जिसकी कम सैलरी है. अब रिमेंबर, ये जो 3000 दिया जाएगा, हर एक एम्प्लॉय को 3000 नहीं दिया जाएगा. दैट इज ऑल रिलेटेड टू देयर सैलरी ओनली. ठीक है. हो सकता है किसी की अप टू 10,000 है, अब 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में है, देन अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स विल बी गिवन टू देम. बट दे हैव टू इंश्योर दैट दे फुलफिल दीज मेनी रिक्वायरमेंट्स विच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन, इन द प्रीवियस स्लाइड्स. दे हैव टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स इफ दे वांट टू बिकम एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. और अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 15,000 जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे. कंडीशंस भी मैंने आपको बता दिए. ये जो 3000 मिलेगा दैट इज अप टू 3000 अगेन. ठीक है. रिमेंबर, हर एक इंडिविजुअल को 3000 नहीं मिलेगा, दैट इज अप टू 3000. उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग, जितनी भी उनकी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करे जाएंगे. सो दैट इज अप टू 3000, मतलब मैक्सिमम सीलिंग 3000 है, बट उससे नीचे नीचे जो है वो उनका इंटायर जो बेनिफिट है उनको दिया जाएगा. जो पेमेंट मेथड है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो जो हमारे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स हैं, दैट विल बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू देयर आधार लिंक्ड अकाउंट ओनली. मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं. बट जो हमारे एम्प्लॉयर है उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कहाँ जाएंगे, पैन लिंक्ड अकाउंट में जाएंगे every 6 months. So this is the differentiation here. And how it is going to help, how it is going to create a difference in my economy. So of course, अगर मेरे को broader objective achieve करना है, that is विकसित भारत, है ना, that is विकसित भारत, तो उसको अचीव करने में हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेगा. मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे टारगेट्स हैं उनको मीट कर पाऊँगी, उनको अचीव कर पाऊँगी. उसके बाद जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, है ना.
employment generation hoga. I know this thing that employment generation will be there. But what kind of employment generation? That will be qualitative employment generation. What comes under quality? That is distribution of social security. That is what is the target here. That is what I will achieve if I am continuously implementing. और हो सकता है कि अगर ये better results देती है तो ये वाले जो initiatives है, फिर जो ये सारे जो achievements हैं, I'll be able to achieve. अगर ये सारे if I'll be able to achieve these many impacts, या फिर अगर मेरे को ये सारी जो चीज़ें वो achieve होती हुई दिखेंगी तो of course जो social issues है हमारी economy में वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कम होंगे. ठीक है, मे बी विच इज़ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, मे बी विच इज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी. सो आई विल बी एबल टू reduce those social securities. So that is it in today's video. I hope I've been able to completely decode this particular initiative, and I hope किसी भी individual के mind में कोई भी doubt नहीं होगा. Still, if you are having any doubt, you can just mention that in the comment section and I'll address it. Okay, thank you so much. I'll meet you in the next video now, and take care, keep revising. Thank you.